So last time we have seen what is a diagram of a complex number. We put real part on the x-axis and we put imaginary part on the imaginary axis, and so that we can plot a complex number. So if you want to plot 2 plus 3i, you have to put 2 on x-axis, you have to put 3 on y-axis, draw the perpendicular where the perpendicular intersects, that the point where you have to find this particular point 2 plus 3i. Similarly, minus 3 plus 2i, you have to put minus 3 on x-axis, 2 minus 2 on y-axis, so that wherever perpendicular intersect, you will get point minus 3 plus 2i. We call this representation by Argand diagram. Then we have seen what is the modulus and amplitude of a complex number. So modulus of a complex number क्या होता है? It is a length of a point from the origin to that point. Whatever distance is there, we will call it as modulus of a complex number. It can be denoted by root of a square plus b square, and it is denoted by mod z. Similarly, what is the argument or amplitude of z? It is a angle made by z with positive direction of x-axis, and it is measured in anti-clockwise direction. We have defined this modulus to be argument of z or amplitude of z. This argument of z is depend on the values of a and b. What does it mean? It is depending on which quadrant the point belongs to. The point, if it is lies in the first quadrant, you have to take the values between 0 to pi by 2. क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रहेगा तो एंगल विथ x एक्सिस क्या रहेगा? 0 रहेगा. पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. फ्रॉम दिस x एक्सिस टू y एक्सिस, द एंगल मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम एट y एक्सिस विच इज pi by 2. ओके. इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, pi by 2 से एंगल शुरू होगा y एक्सिस से विद द नेगेटिव x एक्सिस. नेगेटिव एक्सिस पे एंगल क्या होगा? 180 डिग्री और pi. If you measure in the radian, it will become pi. So either pi or pi by 2 to pi के बीच में एंगल होगा. In the third quadrant में क्या होगा? एंगल यहाँ पे नेगेटिव x एक्सिस से शुरू होगा, that is minus pi. pi से लेके how much? It is negative direction of y axis. It is covering 3/4 part of the circle. 3/4 part means 270 degree or 3 pi by 2. So angle lies between pi to 3 pi by 2. And similarly in the last quadrant, angle शुरू होगा 3 pi by 2 से and it is go up to 2 pi. Okay. So let's come back to our PPT. So next form of a complex number which we are interested in, which is called as polar form and exponent form of a complex number. So what is the polar form and exponent form of a complex number? A polar form or complex number, if I have complex number z is equal to a plus ib, then I can represent it is also form of r comma theta. अभी ये r comma theta क्या है? That we are going to see. In general, I can represent this number as r times cos theta plus I sin theta. So what is this r and I? We will going to see. R is the distance of a point from the origin. मतलब क्या है?
What is the distance of a point Z from the origin? It is nothing but modulus of a complex number. Okay. And theta. Theta क्या है? Argument of a complex number. What does it mean? It is angle made by positive direction of x-axis. So यहाँ पे in this figure I have mentioned what is called as angle and what is called as a arc. So theta is the angle made by this point Z with positive direction of x-axis. So you can represent this point by a plus ib, or you can represent this point by r comma theta. This notation r comma theta is known as polar coordinates of a point. Okay. And if we represent this point in this particular form, r times cos theta plus I sin theta, we call this as polar representation of a complex number. Okay. Yes. So these are the conversion formulas. What are the conversion formulae? Means अगर आपको polar coordinates दिया है तो कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, या फिर कार्टेशियन coordinates दिया है तो पोलर में कन्वर्ट करना है. So we will use this particular formula. So x का वैल्यू क्या होगा? r टाइम्स cos theta. y का वैल्यू क्या होगा? r टाइम्स sin theta. Because we have written over here x plus iy is equal to r times cos theta plus I sin theta. So x का वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होगा? r cos theta. y का वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होगा? I sin theta. अभी ये जो दो फॉर्मूले है, r is equal to root of x square plus y square and theta is equal to tan inverse of y by x. We have seen what is r? R is the distance of that point from the origin. Okay. Therefore, the distance formula we will apply and we will get r is equal to root of x square plus y square. Okay. And what is this theta value? Theta value कल जैसे मैंने बताया था, it is the amplitude. Amplitude कैसे डिनोट होता है? tan inverse of y by x. But यहाँ पे एक गड़बड़ क्या है? We have to take this angle into the consideration. Y और x comma y कौन से quadrant में है, उसके हिसाब से आपको थीटा का वैल्यू लेना है. क्योंकि जब भी आप tan inverse देते हो, when you take tan inverse, you will take two values between 0 and 360. 0 and 360 डिग्री में पूरा सर्कल कवर होता है, ठीक है. बट tan का एक जो साइकिल है, वो पूरा साइकिल ओनली 180 डिग्रीज में कंप्लीट होता है. So we have to take the tan inverse value suitable with the quadrant. Okay. Suitable with quadrant means we have to take the value which is in that quadrant only. Then only we get the correct value of amplitude. So we will study the examples. Okay. Then we will get this particular point clear. Okay. Let's take the exponent form of a complex number. एक्सपोनेंट फॉर्म सिंपल है. अगर आपको पोलर फॉर्म समझ में आया तो एक्सपोनेंट फॉर्म भी समझ में आएगा. पोलर फॉर्म क्या है? x प्लस आई वाई इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i टाइम्स r sin थीटा. ओके. एक्सपोनेंट फॉर्म क्या है? z इज इक्वल टू r टाइम्स e रेज टू i थीटा. वो जो मैंने ब्रैकेट लिखा है cos थीटा प्लस i sin थीटा, दिस इज नथिंग बट e रेज टू i थीटा. व्हाई इट इज e रेज टू i sin e रेज टू i थीटा वी विल गोइंग टू सी. ओके. तो ये कौन से फॉर्मूले से आता है? ऑयलर फॉर्मूले से आता है. e रेज टू i थीटा इज नथिंग बट cos थीटा प्लस i sin थीटा. वी विल prove this result. Okay. What is proof? We have already studied the Taylor series in the unit 1 of sem 2. क्या था Taylor series? e raised to x is equal to 1 plus x upon 1 factorial plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial plus x4 upon 4 factorial, और ये सीरीज infinitely बढ़ती जाती है. Okay. Similarly, if I put instead of x, I put I theta. Instead of x, if I put I theta, what do I get? E raised to I theta is equal to 1 plus
x अपॉन 1 फैक्टोरियल, x के जगह पे क्या किया है आई थीटा, एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या होगा आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर, एक्स क्यूब के जगह पे क्या होगा आई क्यूब थीटा क्यूब, एक्स 4 की जगह पे क्या होगा आई रेज टू 4 थीटा रेज टू 4 एंड सो ऑन. ओके, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ आई स्क्वायर, आई क्यूब एंड आई रेज टू 4. हमने ऑलरेडी कल के लेक्चर में देखा था व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ I square, I cube, I4, etc. Okay. So put that values. What do I get? I theta as it is I square. I square का वैल्यू क्या होता है -1. I cube का वैल्यू क्या होता है -I. एंड I रेज टू 4 का वैल्यू क्या होता है +1. तो पुट दैट वैल्यूज. अभी ये जो वैल्यूज है इसमें थीटा जो वैल्यू है वो रियल नंबर है, आई का वैल्यू जो है वो इमेजिनरी नंबर है. तो वी विल रीअरेंज दिस टर्म्स इनटू रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स. सो जब हम लोग सेपरेट आउट करेंगे रियल पार्ट्स में क्या लेंगे, विल टेक दिस 1 इन द रियल पार्ट, 1 इज अ रियल पार्ट, so we'll take in the first series. Then what is this real? थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये भी रियल नंबर है, विल टेक दैट अकॉर्डिंग टू दैट साइन माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल. देन कौन सा नंबर रियल है, यहाँ पे रियल है क्योंकि यहाँ पे कोई इमेजिनरी टर्म नहीं है, प्लस थीटा रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल. ऐसे ही हम लोग माइनस थीटा रेज टू 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल लेंगे, प्लस थीटा रेज टू 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल लेंगे. All the even terms will be collected in this particular series that is called as first series. यहाँ पे first series complete होता है, I कॉमन निकालो, I कॉमन निकाला तो क्या मिलेगा थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल क्योंकि इसमें I मल्टीपल है. देन यहाँ पे थर्ड टर्म में देखो I थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस, सो माइनस साइन इंटू थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल. देन अगेन मैंने अगर और एक टर्म लिया होता तो क्या होता थीटा रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल. सो ये अल्टरनेट साइन वाला सीरीज है, ठीक है. सो ये जो और जो सीरीज है 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, थीटा रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, माइनस थीटा रेज टू 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये कौन सा सीरीज है, दिस इज अ टेलर सीरीज फॉर द कॉस थीटा. सिमिलरली ये जो सेकंड वाला सीरीज है थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये कौन सा सीरीज है, दिस इज अ सीरीज फॉर साइन थीटा. सो फाइनली आई विल गेट e रेज टू आई थीटा इज नथिंग बट cos थीटा प्लस i टाइम्स sin थीटा. So by using Euler's formula you can convert this number r cos theta plus I sin theta is equal to r e raised to I theta. तो ये जो नंबर है r e raised to I theta, it is called as exponent form of a complex number. ठीक है, let us prove this result. मतलब ये यूज कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं. Convert this following numbers into polar and exponent form. Okay, कौन कौन से नंबर दिए, 1 प्लस आई, 1 माइनस आई, -1 प्लस माइनस आई एंड -1 प्लस आई. सो एक एक नंबर को हम लोग पोलर फॉर्म में और एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. कन्वर्सली भी आप कर सकते हो कि आपको कोई नंबर दिया रहेगा तो उसको आप पोलर फॉर्म में दिया रहेगा तो उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर कार्टेशियन का आप डायरेक्टली एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो. सो बेसिकली आपको क्या करना है, you have to calculate the values of r and value of theta, that is value of modulus and value of amplitude. ये दो वैल्यूज आपको फाइंड करने हैं, ठीक है. लेट्स टेक वन बाय वन. पहला पॉइंट z इज इक्वल टू 1 प्लस आई. कैसे करेंगे इसको, x का वैल्यू क्या है इसमें, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से कन्वर्ट करो, x is equal to 1, y is equal to 1. Is that correct?
Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. In first quadrant. Okay. Yes, sir. तो दोनों का साइन कौन सा है? साइन देखना है आपको। दोनों का पॉजिटिव साइन है, तो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा ये? साइन देख के First आप quadrant. डिसाइड करो। प्लस फर्स्ट First क्वाड्रेंट में quadrant क्या में। रहता है? दोनों साइन पॉजिटिव रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है? एक एक नेगेटिव प्लस एक रहता है और पॉजिटिव। माइनस रहता Yes. एक्स का साइन निगेटिव रहता है, वाई का साइन पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों का निगेटिव रहता है, दोनों नेगेटिव रहती है। और फोर्थ में किसका पॉजिटिव किसका निगेटिव? X का एक्स पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहता है, Y वाई है। Y नेगेटिव का रहता है। पॉजिटिव एक्स एक्स हाँ का पॉजिटिव, वाई का निगेटिव। सो रिमेम्बर दिस कोऑर्डिनेट साइन। ठीक है, तो उस कोऑर्डिनेट साइन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने देखा था कि एम्पलीट्यूड का वैल्यू जो होता है, ये मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पॉइंट, तो वैल्यू किसके बीच में रहेगा? 0 से लेके π/2। अगर आपका पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा का वैल्यू कौन सा इसमें रहेगा? π/2 टू लेके पाई। थीटा का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू क्या रहेगा? पाई से लेके 3π/2। और लास्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू है तो क्या रहेगा? 3π/2 से लेके 2π तक। So remember this sign convention. Depending on the quadrant in which your point belongs to, you have to take the theta value. Okay? ये मैं क्यों कह रहा हूँ अभी आपको दिखाता हूँ। Okay? So let us solve this. What is the value of r? r is equal to square root of x square plus y square. करो, x का वैल्यू 1 पुट करो, y का वैल्यू 1 पुट करो, क्या रहेगा वैल्यू? Square root of 2. Okay. Everyone got this square root of 2? What is theta value? Theta value is nothing but formula क्या बोलता है? Tan inverse of y upon x. Put the value of x and y. Tan inverse of 1 upon 1, which means tan inverse of 1, positive 1. इसके दो solutions है. Whatever is the solution, tan inverse of 1, you know it is π/4. Okay? जो भी solution है उसमें pi add करो, you will get another solution. Okay? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सॉल्यूशन आया tan इनवर्स ऑफ -1 माइनस π/4, तो मुझे दो वैल्यूज मिलेंगे। वॉट एवर इफ आई टेक, ये क्यों होता है मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इफ आई टेक से tan ग्राफ, so can you see the tan ग्राफ? -90 टू +90 के बीच में एक ग्राफ होता है tan का, ठीक है। वही ग्राफ रिपीट किसमें होगा? 90 टू 270 डिग्री, मतलब जो भी वैल्यू है वो 180 डिग्री के बाद रिपीट होगा, राइट। अगेन 270 डिग्री टू 420 डिग्री में वही वैल्यू रिपीट होगा, मतलब आप में अगर उसमें पाई वैल्यू ऐड करोगे ग्राफ में तो आपको सेम वैल्यू मिलेगा tan का। मतलब tan 60 सेम एज tan 60 + 180। 60 + 180 मतलब क्या? 240, राइट? इज इट राइट? tan 60 is same as tan 640. Therefore, what we can conclude from here, आपको पता है tan inverse of 1 क्या होता है? π/4 होता है। तो tan inverse of 1 π/4 में पाई ऐड करो तो क्या मिलेगा? पाई प्लस π/4. When you convert this pi plus π/4, what you will get? मेन वैल्यू आपका क्या है? π/4, और आप क्या करोगे? उसमें ऐड करोगे पाई को, π/4 प्लस पाई, व्हाट यू विल गेट? 5π/4। दो वैल्यूज मिला आपको, π/4 एंड 5π/4। ये दो वैल्यू किसके बीच में? सर्कल में जितना भी 360 डिग्री कवर करता है। यहाँ पे कितना डिग्री होगा? π/2। यहाँ पे कितना होगा? पाई। यहाँ पे क्या होगा? ये पॉइंट पे 3π/2
और कंप्लीट सर्कल किया तो आपको क्या मिलेगा 0 डिग्री सेम एज 2 पाई। 2 पाई मीन्स कंप्लीट द सर्कल। तो tan का कौन कौन सा वैल्यू, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू सर्कल के बीच में आता है, ठीक है। अभी आपका पॉइंट कौन से पॉइंट, एंगल जो है पॉइंट्स कौन से एंगल पे बिलोंग करते हैं, यहाँ पे है आपका पॉइंट। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है 1 + i। इसका एंगल क्या रहेगा, क्या आप π/4 लोगे या 5π/4 लोगे? आई विल टेल यू, π/4 यहाँ पे होगा और 5π/4 बिटवीन पाई टू π/4 के बीच में होगा। तो कौन सा वाले वैल्यू लेंगे आप? 5/4 π/4. Why you take π/4? Because point lies in that quadrant. Okay. So therefore, we have to take as point lies in the first quadrant, we will take theta is equal to π/4. अगर point third quadrant में belong करता तो हम लोग कौन सा वैल्यू लेते? 5π/4. 5/4. So always remember, when you take inverse of tan, you will get two values, out of which you have to select the value according to the quadrant. Okay, understood this concept? क्योंकि आपको ये concept हमेशा यूज होने वाला है। Okay, इसका प्रैक्टिस करो अच्छे से कि how to select the quadrant according to your point. Okay, तो पोलर फॉर्म क्या रहता है? r times cos theta plus I sin theta, put the values। कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो? थीटा इज इक्वल टू π/4 सब्स्टिट्यूट करो, r का वैल्यू √2 सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट दिस इक्वेशन, √2 cos π/4 प्लस, नहीं लेंगे हम लोग सर। हाँ 5π/4 कब लेंगे आप? जब पॉइंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो ही आप 5π/4 लोगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सर पहले से हम लोग को पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो है। हाँ, क्योंकि आपका पॉइंट क्या है 1 + i, इसमें x का वैल्यू y का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। x का वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू निगेटिव है, तो आपको समझ जाएगा ना कौन सा क्वाड्रेंट में है वो वैल्यू। यस सर। अंडरस्टूड? So Yes, that's sir. why we have Yes, to sir. compute that first कि कौन से क्वाड्रेंट में है, फिर ही हम लोग एम्पलीट्यूड का वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। Therefore, what is the exponent form? Exponent form क्या है? r e⁻⁴ theta. Substitute the values. r का वैल्यू √2, i as it is, theta का वैल्यू π/4। अगर आपको कन्वर्स में ऐसा दिया होगा क्वेश्चन, if z is equal to √2 e⁻⁴ π/4, what is the value of x and y? Then how you will do? r का वैल्यू मिलेगा, इससे एक्सपोनेंट फॉर्म से क्या मिलेगा? r and थीटा का वैल्यू मिलेगा। आप कन्वर्जन फॉर्मूले में r and थीटा का वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वैल्यूज ऑफ x and y। ओके, तो इन शॉर्ट आपको अगर x and y का वैल्यूज दिया है तो आपको r and थीटा का वैल्यूज ढूंढना है, और अगर आपको r and थीटा का वैल्यू दिया है तो आपको x and y का वैल्यूज ढूंढना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इज दिस क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, 1 - i। अभी क्या है? x का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, y का वैल्यू निगेटिव है। अभी आप मुझे बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है? Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट। व्हाई यू टेक फोर्थ क्वाड्रेंट? आप चेक करो X कौन से positive है, Y क्वाड्रेंट है। negative है. x पॉजिटिव है, y निगेटिव है, इसलिए आपको कौन सा क्वाड्रेंट मिला? फोर्थ क्वाड्रेंट। Fourth quadrant. ठीक है, अगेन आप वही परफॉर्म करो। r तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्लस स्क्वायर करो या माइनस स्क्वायर करो दोनों सेम रहेगा, राइट? यस और नो? Yes. Yes, sir. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? tan इनवर्स ऑफ -1। tan इनवर्स ऑफ -1 क्या होता है? लेट अस टेक दिस पर्टिकुलर थिंग हियर। tan inverse of -1. What is two form it takes? Tan inverse of negative theta. Tan inverse of theta, negative theta is equal to minus tan inverse of theta. I can write this minus π/4.
राइट? यस और नो? Yes, sir. हाँ, अभी मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, पाई ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक एंगल किसके बीच में चाहिए, 0 to 360 के बीच में चाहिए. ओके, सो -π/4 0 to 360 के बीच में नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, प्लस पाई ऐड करूंगा. क्या होगा मेरा आंसर? 4 - 1 3π/4. और एक 4. एंगल ऐड करो, क्योंकि आपको दो वैल्यू चाहिए. तो 3π/4 प्लस पाई क्या एंगल होगा? 7π/4. अभी मैं आपको एक ग्राफ बताता हूं. देखो, यहाँ पे पॉइंट है 1,1, दैट इज 1 प्लस आई. यहाँ पे पॉइंट क्या होगा? एक्स एक्सिस पे निगेटिव वैल्यू है, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यू है, -1 प्लस आई. यहाँ पे पॉइंट क्या होगा? दोनों में निगेटिव वैल्यू है, -1 माइनस, हाँ, और यहाँ पे वैल्यू क्या होगा? -1 -I. प्लस 1 माइनस आई. हाँ, तो अभी मुझे यहाँ पे एंगल बताओ, यहाँ पे एंगल कितना डिग्री सब्स्टिट्यूट करेगा? π/4. यहाँ पे कितना डिग्री एंगल सब्स्टिट्यूट करेगा? 3π/4. पॉजिटिव एंगल π/2 प्लस π/4. यहाँ पे क्या? पाई प्लस π/4 विच इज 5π/4. और यहाँ पे एंगल क्या करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/2 रहना चाहिए ना, 90 डिग्री है ना. नहीं, 90 डिग्री आपको y एक्सिस पे मिलेगा. y एक्सिस इज अ परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तो y एक्सिस पे 90 डिग्री मिलेगा. ये दोनों के बीच में 1 प्लस आई π/4 एंगल पे है. समझा? ये इसके बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट है तो उसका एंगल कितना होगा? बिटवीन 0 to π/2. सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल कितना होगा? π/2 to पाई. थर्ड क्वाड्रेंट में पाई टू 3π/2 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 to 2π. राइट? तो आपको दो एंगल मिले, 3π/4 which is angle in second quadrant and 7π/4 which is angle in फोर्थ क्वाड्रेंट. आपका पॉइंट कहाँ बिलोंग करता है? पॉइंट बिलोंग करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में. राइट? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू कौन सा ले सकते हो आप? 7π/4. 7. ओके, यू कैन ड्रॉ द डायग्राम एंड टेक द वैल्यूज. ओके, यहाँ पे मैं सबका दिखाया, बट अगर मैं सिर्फ सेम ओनली आई विल इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, लेट मी ड्रॉ केयरफुली. आपको कौन सा पॉइंट निकालना है? 1 माइनस आई. एक्स एक्सिस पे वैल्यू क्या लोगे? 1 लोगे. वाई एक्सिस पे क्या लोगे? -1 लोगे. ड्रॉ द परपेंडिकुलर, you will get point over here. This is a point 1 minus I. Which quadrant it belongs to? कौन से क्वाड्रेंट में है? और Fourth एंगल quadrant. कितना सब्स्टिट्यूट करता है? अगर आपके पास मेजर करने के लिए है तो आप एंगल मेजर करो, मेजर करके भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है. ओके, the angle is made by this particular point is we want to take, we cannot take this angle. Why we cannot take this angle? Because it is measured in clockwise direction. What is amplitude? We said amplitude is angle measured in anti-clockwise direction. तो अपने को इतना बड़ा एंगल लेना है. तो यहाँ तक निगेटिव एक्स एक्सिस तक कितना कवर करेगा? पाई. यहाँ तक कितना कवर करेगा? यस, टेल मी. 3π/2. और 3π/2 के आगे भी वो π/4 मूव कर रहे हैं. तो 3π/2 to प्लस π/4 कितना होगा? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 6π/4. तो 6 + 1 7. यू विल गेट एंगल इज इक्वल टू 7π/4. इसमें मैंने कंप्यूटेशन कुछ भी नहीं किया, मैंने ग्राफ निकाला और ग्राफ से एंगल निकाला. ओके,
So you can take this kind of help also. अगर कोई y axis पॉजिटिव y axis पे पॉइंट है, उसका एंगल क्या होगा? π/2 डायरेक्टली कर सकते हो. कोई निगेटिव x एक्सिस पे पॉइंट है, उसका एंगल क्या होगा? 180 डिग्री डायरेक्टली कर सकते हो. अगर आप आपका कोई भी एंगल निगेटिव y एक्सिस पे होगा, उसका एंगल क्या होगा? 3π/2 डायरेक्टली. मतलब आप अगर ग्राफ से करोगे तो डायरेक्टली आपको एंगल मिल सकता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल तो इसलिए मैंने एंगल क्या लिया? 7π/4. सो आइदर आपको tan इनवर्स से आपको 2 वैल्यूज मिलेगा, उसमें से एक वैल्यूज लेना है, या फिर आपको क्या करना है, ग्राफ देख के भी आप डिसाइड कर सकते हो. या तो साइन देख के डिसाइड करो. ये मैंने साइन देख के किया है, क्योंकि हर बार अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करके बैठा तो बहुत टाइम जाएगा. ठीक है, साइन देख के डिसाइड किया कौन से क्वाड्रेंट में, और अकॉर्डिंगली मैंने वैल्यू लिया. 2 वैल्यूज मिलता है मुझे tan इनवर्स का. आपके कैलकुलेटर में फंक्शन है tan इनवर्स. ओके, इन एग्जाम यू आर अलाउड टू यूज कैलकुलेटर, सो डोंट, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आपको टेबल याद नहीं तो कैसा करोगे, ऐसा कोई इश्यू नहीं होगा आपको, क्योंकि आपको कैलकुलेटर्स अलाउड है. ओके, चेक करो आपके पास tan इनवर्स का वैल्यू रहेगा, शिफ्ट या अल्फा दबा के आपको tan इनवर्स मिल जाएगा कैलकुलेटर में. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू परफॉर्म थर्ड एंड फोर्थ. थर्ड में क्या है? -1 -i. अभी मुझे बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड क्वाड्रेंट. हाउ यू डिसाइड थर्ड क्वाड्रेंट? बिकॉज बोथ हैव नेगेटिव साइन. बोथ नेगेटिव मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू क्या रहता है? थीटा का वैल्यू क्या रहता है? बिटवीन पाई टू 3π/2. तो ये आप π/2 के एंगल पे हर एक क्वाड्रेंट डिसाइड होता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है. राइट, परपेंडिकुलर मतलब क्या है? 90 डिग्री. 90 डिग्री, नेक्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री पे होगा, दैट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस 180 डिग्री, और -π और +π. और कभी कभी कोई बुक में आप अगर निगेटिव लोगे, मतलब क्लॉकवाइज जब मेजर करते हो एंगल, फॉर एग्जांपल ये मैं π/4 है ना, 7π/4, उसके जगह पे मैं -π/4 लेता हूँ ना, तो भी मुझे चलता है. वाई इट इज कैन बी डन इन नेगेटिव साइन? क्योंकि cos थीटा जो निगेटिव होता है वो क्या होता है? cos थीटा ही होता है, cos π/4 ही रहेगा, सिर्फ साइन का चेंज होगा. सो आई कैन राइट बाय यूजिंग नेगेटिव ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल ये जो फर्स्ट था, मुझे क्या था, ये वाला पॉइंट मुझे निगेटिव आया ना, 7π/4 लिया था मैंने, इसके जगह पे मैं -π/4 लेता. क्योंकि -π/4 क्यों? क्योंकि मैं उल्टे डायरेक्शन में एंगल कंप्यूट कर रहा हूँ. तो मेरा क्या था? √2 इन ब्रैकेट cos -π/4 प्लस i टाइम्स. हेलो सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर, स्क्रीन विजुअल नहीं है. एक मिनट. हाँ अब सही है, अब आ गया. Now is it visible now? हाँ सर, हाँ ठीक है अभी. ओके, ठीक है. सो लेट्स कम बैक टू हियर. अगर मैं निगेटिव एंगल लेता तो क्या होता? √2 cos of negative theta, cos of minus theta is same as cos theta, so it is cos π/4. What is sin of minus theta? It is minus times sin theta, I sin π/4. So ये किसके लिए आया मुझे? This is for 1 minus i, और मेरा 1 plus i के लिए क्या था? √2 cos π/4 plus I sin π/4. Can you see this? And 1 plus and 1 minus are conjugate to each other in the polar form as well. क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे जो मेरा वैल्यू था 1 plus i के लिए cos π/4 plus I sin π/4 आया, और यहाँ पे क्या आया?
cos pi by 4 minus I sin pi by 4. Are they conjugate of each other? Yes, sir. तो आपको कॉन्जुगेट का डायरेक्टली मिल सकता है पोलर फॉर्म, अगर आपने आपके इसमें आपने निकाला है और आपको कॉन्जुगेट का ढूंढना है, तो क्या करोगे, डायरेक्टली पोलर फॉर्म जो निकाला है उसका कॉन्जुगेट लेके भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो. दिस इज अनदर ट्रिक कि आपको अगर 1 प्लस आई का पता है कि पोलर फॉर्म क्या है, तो आपको 1 माइनस आई का पोलर फॉर्म डायरेक्टली मिल जाएगा, क्योंकि दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. कॉन्जुगेट है मतलब क्या है, सिर्फ इमेजिनरी टर्म का आपको साइन चेंज करना है. अंडरस्टूड दिस? वी विल यूज दिस इन द डी मोवियस थ्योरम. जब डी मोवियस थ्योरम के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें जनरली क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे ही देता हूं. जैसे मैंने लेट मी ओपन दिस. इज दिस विजिबल? Consider this problem. Find the value of 1 plus I raised to I root 3 raised to 6 plus 1 minus I. ये जो Q वाला प्रॉब्लम है वो बोल रहा हूँ. 1 minus I root 3 raised to 6. अब ये 1 plus I root 3 and 1 minus I root 3 क्या है, कॉन्जुगेट है एक दूसरे के. तो ये जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो पोलर कोऑर्डिनेट से सॉल्व करेंगे. सो पोलर कोऑर्डिनेट में अगर मैंने 1 प्लस आई रूट 3 का वैल्यू निकाला कन्वर्ट करके, तो मुझे 1 माइनस आई रूट 3 का फिर से वो आर एंड थीटा फाइंड करने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो वैल्यू आएगा मैं उसको कॉन्जुगेट अप्लाई कर दूंगा. अंडरस्टूड? ओके. नाउ सिमिलरली यहाँ पे n वाला जो प्रॉब्लम है, 1 प्लस आई रेज टू 10 प्लस 1 माइनस आई रेज टू 10. तो मैं अगर 1 प्लस आई को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, तो उसको मैं 1 माइनस आई को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की मुझे जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली उसका कॉन्जुगेट ले लूंगा. अंडरस्टूड दिस? ओके. सो रिमेनिंग टू आई एम टेकिंग इट एज अ एक्सरसाइज फॉर यू. मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, बट आप खुद से सॉल्व करो. -1 माइनस आई एंड -1 प्लस आई, ये भी दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है. तो एक का निकाला तो बाकी का दूसरा पोलर फॉर्म ऑलरेडी आ जाएगा. ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो एंगल क्या लिया मैंने, अगेन दो वैल्यूज मिलेंगे मुझे. tan इनवर्स ऑफ 1 ही आएगा. -1 अपॉन -1, साइन विल गेट कैंसिल आउट. यू विल गेट tan इनवर्स ऑफ 1 लाइक द फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट में भी tan इनवर्स 1 था, थर्ड में भी tan इनवर्स 1 है. दोनों में वैल्यूज क्या है, π/4 और 5π/4. बट फर्स्ट वाला जो था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, इसलिए π/4 लिया. बट जो थर्ड वाला पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग लेंगे 5π/4. अंडरस्टूड दिस? Solve more and more problems so that this concept will become clear. Okay? आपको tan का जो भी वैल्यू मिलता है वो अगर 0 to 360 में नहीं होता है, जनरली tan इनवर्स कहाँ पे डिफाइन होता है, -π/2 to +π/2. इफ यू हैव स्टडीड दिस इन HSC, आपको पता होगा tan इनवर्स का वैल्यू कहाँ पे बिलोंग करता है, -π/2 to +π/2. बट अपने को एम्पलीट्यूड के लिए इंटरेस्टेड किसमें है, 0 to 360 डिग्री. ओके. मैं आपको एक सिंपल टेक्निक दूंगा, उससे आप क्या कर सकते हो, इजीली फाइंड कर सकते हो. आपको अगर फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपका पॉइंट है, तो डायरेक्टली tan इनवर्स का जो वैल्यू मिलता है वो लिखो. अगर आपका पॉइंट इसमें है, सेकेंड या थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो उसमें पाई ऐड करके लिखो. दैट इज अ सिंपल टेक्निक. ओके. So I will write this simple technique over here. I will write this as theta is equal to tan inverse of y upon x. When you take this value as, when x plus iy lies in first
एंड और फोर्थ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखता हूं, tan इनवर्स ऑफ y by x प्लस पाई बाय when x plus iy lies in ये कब होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। व्हाट अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो वैल्यू किस में मिलेगा, 0 to पाई बाय 2 के बीच में, सॉरी ये मुझे लगता है पाई माइनस रहेगा। आई विल चेक दिस पर्टिकुलर थिंग, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग बिकॉज आई फील दैट आप अगर क्वाड्रेंट से करोगे तो फटाक से होता है, ये सब फॉर्मूले बहुत आपको नहीं तो रिमेम्बर करने पड़ेंगे। So I always teach using this particular quadrant form. Okay. So this similarly last point में -1 रहेगा, जैसे हमने सेकंड में किया था, दो वैल्यूज मिलेंगे 3 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4, which is lies between 0 to 360 degree. But point lies in second quadrant, so you take pi by 4, 3 pi by 4. So actually the value is like this. Let us write this particular thing so that आपको कैलकुलेटर आपके पास है तो डायरेक्टली कर सकते हो। tan इनवर्स ऑफ y by x, this is in फर्स्ट और फोर्थ, डायरेक्टली लो इसको, पाई माइनस tan inverse of y by x if lies in second quadrant, and thirdly pi plus tan inverse of y by x if it is lies in third quadrant. तो अगर आपको कैलकुलेटर यूज करना है तो आप ये कर सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 3 वैल्यूज, tan inverse of y by x if it is between first and fourth quadrant. If it is second quadrant, you have to take pi minus tan inverse of y by x, and if it is third quadrant, you have to take pi plus tan inverse of y by x. So this is how the simplifying the things for you. If you using the calculator directly, आप directly कर सकते हो इसको। थीटा इज वैल्यू, थीटा का वैल्यू ये तीन ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन द quadrant. Okay, so let's come to our PPT. Mathematical operation on complex numbers. If you add these two complex number, you are know how to adding the complex number. Real parts are added together, imaginary parts are added together. What does this mean? A plus IB plus C plus ID क्या होता है? A and C add करो directly plus I times B plus D. Similarly, subtraction is also simple. Subtraction क्या होता है? Subtract the real components and subtract the imaginary components. A plus IB minus C plus ID क्या होगा? A minus C plus I times B minus D. Next क्या होता है? Multiplication of complex numbers. So ये दो बहुत ही easy है, ये फटाक से हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन थोड़ा आपको बहुत सारे स्टेप है। A plus IB into C plus ID कैसे करोगे? A multiply with the all the second bracket plus I times B multiply with all the second bracket. Compute the terms AC plus A times B into I plus B times C into I plus B times D into I square. अभी I square का वैल्यू क्या होता है? Anyone? I square is equal to minus 1. So it is AC minus BD. रियल कंपोनेंट्स जब आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे मैंने बोला
कि आपको जब भी मैं बोलता हूँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसका जो रिजल्ट है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए मतलब क्या है, इट शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस IB। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, AC माइनस BD, विच इज द रियल पार्ट। हाँ, स्क्रीन छोटे वाले में दिख। नाउ यस सर, दिख रही है। ओके, सो व्हाट यू विल टेक नाउ, whatever is the operation, आपको एंड रिजल्ट जो है वो कौन से फॉर्म में लिखना है, रियल पार्ट प्लस I टाइम्स इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, AC माइनस BD, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है, AD प्लस BC। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या बोलता है कि when two complex numbers are multiplied, their modulus gets multiplied and their amplitude gets added. What does we have to prove? So when we express this number into the polar form, Z1 क्या होगा, R1 into cos theta 1 plus I sin theta 1, and Z2 क्या होगा, R2 into cos theta 2 plus I sin theta 2. So when I multiply Z1 into Z2, that R1 and R2 will get multiplied. इसमें किसी को डाउट है क्या? R1 and R2 will get multiplied और ये जो दो ब्रैकेट है वो मल्टीप्लाई होंगे। तो जब फाइनल रिजल्ट मिलेगा तो उसका एम्पलीट्यूड जो होगा Z1 into Z2 का एम्पलीट्यूड विल बी थीटा 1 प्लस थीटा 2, एंड ये जो एंगल होगा, एंगल विल बी थीटा 1 प्लस थीटा 2। So that is how we have to prove here. So multiply करो cos theta 1 in plus I sin theta 1, cos theta 2 into I sin theta 2. कैसे multiply करोगे, first cos theta 1 multiply with the all the second bracket, cos theta 1 को दोनों ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस I sin theta 1 को सेकेंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया। What is the result? Cos theta 1 into cos theta 2 plus I times cos theta 1 into sin theta 2 plus I times sin theta 1 cos theta 2 plus I square sin theta 1 into sin theta 2. What you have to remember over here? I square का वैल्यू क्या होता है, -1, इसीलिए वो रियल टर्म के साथ कंबाइन होता है। All the even powers of I combine with the real term. All the odd power I will combine with the imaginary term. ये हमेशा याद रखो। तो I square जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन में किया था, we put I square is equal to -1. तो ये वाला जो लास्ट टर्म है वो पहले टर्म के साथ कंबाइन होगा। क्यों कंबाइन होगा? क्योंकि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, रियल टर्म्स को एक साथ रखते हैं, इमेजिनरी टर्म को एक साथ रखते हैं। So we combine this last term with the first term. What do you get? Cos theta 1 cos theta 2 minus sin theta 1 sin theta 2. और इमेजिनरी टर्म के साथ क्या बचेगा? Cos theta 1 sin theta 2 plus sin theta 1 cos theta 2. अभी ये जो बचा है इसका मतलब क्या है? What is this cos A cos B minus sin A sin B? It is cos of A plus B. You have remember this formula of compound angle, cos of A plus B is equal to cos A cos B minus sin A sin B. Cos of A minus B is cos A cos B plus sin A sin B. तो जब cos में निगेटिव वैल्यू होता है तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होता है और वाइस वर्सा। सिमिलरली साइन का टर्म क्या है, sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B. तो वो फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग को क्या मिलेगा, this first bracket is nothing but cos of theta 1 plus theta 2. Similarly, second bracket is nothing but I times sin of theta 1 plus theta 2. So what does this mean? When I multiply these two complex numbers Z1 and Z2, their modulus क्या होगा? First का modulus R1, second का modulus is R2. Their modulus will get multiplied. और जो final angle है, angle क्या होगा? Angle will be added theta 1 plus theta 2. So when I
use the graph, this will become a clear picture. Suppose मेरे पास ये function है, I will put the graph so that this become a clear number. Suppose मेरा first number is like this, यहाँ पे Z1 है और यहाँ पे Z2 है, ठीक है। यहाँ पे एंगल क्या होगा, θ1 होगा, सेकंड का एंगल क्या होगा, θ2 होगा। आई थिंक आई शुड टेक अ बिगर पिक्चर, यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इतना छोटा में। Consider this first Z1 and consider this as Z2. अगर इसका एंगल है, Z1 का एंगल कितना होगा, θ1 है, और Z2 का ये पूरा एंगल कितना है, θ2 है। तो मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो समवेयर लाइक दिस होगा, वेयर यहाँ पे डिस्टेंस अगर 1 है 2 है तो यहाँ पे डिस्टेंस 2 एंड 3 है। Z1 का डिस्टेंस ओरिजिन से 2 है, Z2 का डिस्टेंस 3 है, तो यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, 2 इंटू 3 6। तो ये बड़ा नंबर होगा Z1 इंटू Z2, जिसका मॉड्यूलस बड़ा होगा। और ये जो एंगल है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यहाँ पे एंगल क्या होगा, θ1 प्लस θ2. So this is the geometric representation of multiplication. So when you multiply two complex numbers, Z1 and Z2 will multiply their modulus R1 and R2 and their angles will get added to each other. Okay. So this is how the complex numbers take place. Yes. Okay. ठीक है, डिवीजन कल देखते हैं। So there are two mathematical operations remaining. One is called division of a complex number and other is called square root of a complex number. So these two mathematical operations are remaining. We will see this tomorrow. Tomorrow nahi, next lecture में. Okay. So we will stop here. Thank you, sir.